Hello, very good afternoon to all of you. So today we are here for a very informal session of Toppers Talk. So I am here at DAM's Dilshad Garden Center with our NEET PG rankers from University College of Medical Sciences. I have with me Dr. Abhishek, Dr. Mimansa and Dr. Shubham. I welcome all of you with a great round of applause. Very much congratulations to all of you. So just before we start, I would like to felicitate you all. So Abhishek, this is for you. Heartiest congratulations. Thank you. Please have a seat, Abhishek. Himansa, this is for you. And Shubham, please have a seat. All right. So today what we have planned is, please have a seat. So we will have a talk from our rankers. Abhishek has secured rank 54, Mimansa has secured rank 63, and Shubham has secured rank 171. So rather than me telling you as a faculty, I would like them to speak about their journey, their preparation, any specific strategy tips. So how we will go ahead with this? First, I will allow them to speak on by themselves, and then if anyone among the audience has any question, you can directly ask our rankers. Abhishek, I'll start with you. कुछ भी कहना चाहते हैं आप? हाँ जी. Thank you, sir. Myself, Dr. Abhishek. I secured a rank of 54 in this NEET PG exam. I joined in DAMS in the starting of third year, and I used to make notes very sincerely. Then second, I used to attend all the classes, especially classes which are of final year. We can't miss them. For example, classes of Dr. Arvind sir of CVS and GIT, then Deepti Bahal ma'am for OBGY, then Sachin sir psychiatry, then radio Sumer Sethi sir. So there are around 9 to 8 classes which I usually paid a lot of focus in making notes. Then I used to revise my notes along with the Q bank to basically improve my memory. Then in the final year, after passing the final year, I joined the test and discussion. It is basically it is for around 6 to 8 months, and in that short span of 6 to 8 months, we can easily complete first revision. So the test and discussion helped in that, and by the end of third year, I also given lots of GT. So simultaneously, I used to give GT as well as the TND. So at the end of TND, I have completed my first revision. Then for the further revision, I used to pay focus for the topics which I got wrong in the GTs, and I used to emphasize on that topic. Then I also attended the DAMS Visual Treat DVT session, which was really good, and it helped in securing this rank. So, thank you. Thank you, Abhishek. Mimansa? Sir, I think first of all I'll introduce myself. I'm Dr. Mimansa Jindal. I secured a rank of 63 in this NEET. For me, the most important secret was to start early. So I've been a DAM student since my pre-foundation years. I've made my first and second year notes in my second year itself, and I completed my third and final year notes in third year itself. So the message that I want to pass on to my juniors is to be consistent in all the years of MBBS, be it your first year, be it your second year, be it your third year or fourth year. You have to complete whatever subjects you have in that particular year itself. That includes notes making, solving your Q banks, giving subject-wise tests, and finally what I believe is that everybody, each one of us, should give at least 1 GT at the start of their final year and 1 GT at the end of their final year, just to know that how much they've improved. And I think during the internship, the most important thing is to revise as many times as you can. In my case, I think I did 4 to 5 complete revision cycles, 3 to 4, like I kept 3 to 4 cycles towards the end, near the exam. And DAMS DVT, particularly this year's DVT, was very important in contributing to my revision cycles. So yeah, that's about it. All right, thank you, Mimansa. Shubham? I secured all India rank 171. It was nearly same for me. The preparation cycle was nearly same, but I think initially I was lagging behind in the setup that
आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन माई स्टैंडर्ड बुक्स इन माई सेकंड ईयर, इन माई फर्स्ट ईयर और इवन इन द थर्ड ईयर आई थॉट कि स्टैंडर्ड बुक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. बट देन आई रियलाइज कि आई एम लैकिंग समवेयर बिकॉज इट्स टेकिंग टू मच टाइम बट मेमोराइजिंग वेरी लेस. सो आई वॉज मेकिंग माई नोट्स रेगुलरली बट आई वॉज नॉट रीडिंग देम अलॉट एंड ऑल्सो नॉट डूइंग एनी क्वेश्चन. देन आई गॉट अ रियलिटी चेक दैट कि थर्ड ईयर खत्म हो चुका है एंड मैंने एक भी मॉड्यूल नहीं किया है. देन आई गॉट कि मैंने DQ भी स्टार्ट भी नहीं किया है. तो फिर समहाउ वी गॉट एन एडवांटेज कि फाइनल ईयर की स्टार्टिंग में ही मेरे नोट्स तो काफ़ी हद तक कंप्लीट है पर फाइनल के स्टार्टिंग में मैंने कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर रखे थे. तो एंड उस टाइम पे कोविड फेज़ आ गया तो डेट गेट मी एडवांटेज एंड मेरे को वो कवर करने का टाइम मिल गया. तो मैंने उस टाइम पे जितने भी क्वेश्चंस कर रखे थे विद द रिवीजन मैंने उस टाइम पे सारे मॉड्यूल कंप्लीट करे. उसके बाद अपने SW लगातार देने लग गया. तो डेट वॉज द टाइम डेट वॉज टर्निंग पॉइंट फॉर मी. एंड उसके साथ साथ फिर मैंने उसके बाद फिर TND को बहुत ज़्यादा फोकस करा. एंड समहाउ मतलब यहाँ पर सुनील जी हैं उनके साथ रिक्वेस्ट की थी कि मैं यहाँ पे TND आ सकता हूँ क्या. तो मैं फाइनल ईयर में ही अपने सीनियर बैच के साथ TND देता था पीछे बैठ के. एंड समहाउ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. मीमांसा भी मेरे साथ आती थी, बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था. पीछे बैठे थे हम, ज़्यादा आंसर नहीं करते थे बट उस टाइम पे TND देना हमारे लिए बहुत बड़ा था. लाइक उस टाइम पे क्वेश्चन का करने का एक्सपोजर आ जाता है. लाइक इट्स नॉट कि आपको क्वेश्चन करना है सिर्फ, उसमें कि करना कैसे है वो पता चल जाता है. डैम्स में ये बहुत अच्छी बात है, क्लिनिकल स्टेम क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं एंड लाइक आपको आइडिया लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन में क्या चीज़ आप मिस आउट कर सकते हो. तो वो बात जो अच्छे से टीचर एक्सप्लेन कर देते ना, तो उस टाइम तक मैंने क्वेश्चन करना ढंग से स्टार्ट भी नहीं करे थे. तो मेरे को जब क्वेश्चन करना पहले आ गया था उसके बाद जब मैंने स्टार्ट करे तो मुझे क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी नहीं आई. आई थिंक दैट वॉज रियली अ पार्ट कि मेरे को एंड में जाके इतने क्वेश्चन करने ही नहीं पड़ते थे. एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर मैं नोट्स ही पढ़ लूँगा तो इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक के क्वेश्चन मैं आराम से कर लूँगा. So that's was something which was very important for me. Then in internship somehow I managed time and I was able to. All right. So before I put on allow audience to question, दो सवाल जो मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा क्योंकि आप तीनों के तीनों ने ही इंटर्नशिप के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है. सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, यू नो देयर इज़ वेरी मेनी स्टूडेंट्स हु से इंटर्नशिप इज़ हेक्टिक, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है. तो आप लोगों ने जल्दी स्टार्ट किया तो एक एडवांटेज तो डेफिनेटली हुआ, लेकिन इंटर्नशिप में आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया और इंटर्नशिप में प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया? मैं आप तीनों से सुनना चाहूँगा इसके बारे में. शुभम आप बोलिए पहले. सर इट्स लाइक कि इंटर्नशिप में ऑब्वियसली टाइम बहुत कम आता है. लाइक देयर आर सम ड्यूटीज़ जिसमें आपको ऑफिस आवर्स टाइप काम करना होगा 2 to 4 तक एंड उसमें टाइम मिल जाएगा. इट्स रियली गुड कि ऐसी पोस्टिंग जब आती हैं. बट सर देयर विल बी पोस्टिंग जिसमें इमरजेंसी ड्यूटीज़ होंगी, 12 आवर ड्यूटीज़ होंगी, नाइट ड्यूटीज़ होंगी. तो उसमें आपको नाइट में सोने के बाद आपको अगले दिन भी आप लेट उठोगे, फिर आपको रात को भी सोना है बिकॉज अगले दिन मॉर्निंग में आना है. तो सर 48 आवर्स में भी आपको 8 आवर्स भी इफेक्टिवली नहीं मिलते हैं. बट सर समहाउ उस टाइम ऐसी ड्यूटीज़ में और ड्यूटी टाइमिंग्स में ही निकालना पड़ता है टाइम. उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं. लाइक आई यूज टू टारगेट माई सेल्फ कि अगर मैं इन्वेस्टिगेशन लेने नीचे जाऊँगा तो मैं 2 मॉड्यूल पक्का करके आऊँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे PG कॉल आए या ना आए, मैं 2 मॉड्यूल करने ही करने हैं. चाहे वहाँ पे कितना भी टाइम लग जाए, अगर इन्वेस्टिगेशन वेट हो रही है तभी मैं 2 मॉड्यूल करूँगा. कहीं भी साइड पे बैठ जाऊँगा पर 2 मॉड्यूल तो पक्का करके आऊँगा. तो ऐसे टारगेट्स में बना देता था कि 4 मॉड्यूल्स दिन के होने चाहिए. अगर ड्यूटी में 8 आवर्स है तो 5 मॉड्यूल्स होने चाहिए. तो मैंने ये कर रखा था कि क्वेश्चन वाला पार्ट, मैनी पीपल से कि क्वेश्चन वाला पार्ट घर में करना चाहिए, माइंड से करना चाहिए. बट अगर मैं नोट्स ही नहीं पढ़ पाऊँगा घर पे तो फिर या फिर रूम पे जाके तो इट्स नो पॉइंट. तो मैं क्वेश्चन अपना पूरा का पूरा मॉड्यूल जितना भी था वो ड्यूटी पे खत्म करके ही आता था. नॉट अ सिंगल क्वेश्चन वॉज डन एट होम. अगर सपोज संडे भी मेरे को ऑफ मिल गया तो मैं उस दिन क्वेश्चन नहीं करूँगा बिकॉज देवर डेज जो मैं 8-8, 9-9 मॉड्यूल ड्यूटी पे ही कर लेता था. इवन 13 मॉड्यूल्स का एवरेज आने लग गया था कुछ ड्यूटी पे जिसमें मेरे को खाली बैठने को मिल जाता था. तो फिर मैंने ये था कि ड्यूटी के टाइम पे सब क्वेश्चन मेरी डिमांड्स पूरी हो जाए और ताकि घर पे जाके मेरे को सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ने हो. इवन इफ अगर उसके एडिशंस करने हो वो भी मैं स्क्रीनशॉट या बुक मार्क कर लेता था ताकि मैं घर पे जाके ऐड कर लूँगा. बट क्वेश्चंस मैं घर पे जाके नहीं करूँगा. तो दिस वाज समथिंग विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने फॉलो किया इंटर्नशिप में. गुड शुभम, थैंक यू. मीमांसा इंटर्नशिप के बारे में कुछ? सर आई थिंक मोस्ट ऑफ इट शुभम हैज़ कवर्ड. मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट थी इन द वे कि जो ड्यूटी का टाइम होता था उस पर आई हैड डिसाइडेड कि आई विल टच द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स. डिफिकल्ट एज इन जिसको याद करने में दिक्कत होती है. बिकॉज अगर मैं ईजियर टॉपिक उठाऊंगी तो आई वोंट बी एबल टू फोकस. आई विल बी इनटू जो भी इंटर्नशिप का काम है और उतना फोकस नहीं जाएगा वहाँ. सो कोई भी स्कोर है, कोई स्केल है, कोई स्टेजिंग है, वो चीज़ मैं ड्यूटी के टाइम पे याद करती थी. इंटर्नशिप में छापा मार पढ़ाई करनी है. छापा मार पढ़ाई है इसकी तुम्हें 1 मिनट मिला, PG ने बोला कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ तो इतने ये काम कर लो, तभी जैसे शुभम ने बोला क्वेश्चन बैंक लगाना है. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इक्वली इंपॉर्टेंट इज़ दैट यू स्पेयर एटलीस्ट 3 to 4 hours, नो मैटर हाउ हेक्टिक योर ड्यूटी इज़, एटलीस्ट 3 to 4 hours अ डे आफ्टर योर ड्यूटीज़. ये इमरजेंसी ड्यूटीज़ में नहीं हो पाएगा, दैट आई नो, बट बाकी ड्यूटीज़ पे इट्स फेयरली पॉसिबल. सो कंसिस्टेंट रहना है. यू डोंट हैव टू लूज़ कि अब तो नहीं हो पाएगा, मेडिसिन स्टार्ट हो गई तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना. 2 से 3 घंटा ईजिली निकल जाता है. और जब पीडियाट्रिक्स आएगी, कैजुअलिटी आएगी, इलेक्टिव आएगी तब 6 से 8 घंटे भी निकलेगा. सो कंसिस्टेंट रहना है. यू डोंट हैव टू लूज़ फेथ इन योर सेल्फ. अभिषेक कुछ ऐड करना चाहेंगे इंटर्नशिप के बारे में? सर मोस्टली कवर कर दिया इन दोनों में. बट इंटर्नशिप सर इतनी भी हेक्टिक नहीं होती अगर आप अच्छे से करो. इंटर्नशिप से सर एक शेड्यूल बन जाता है
कि आपको जल्दी सुबह उठ के ड्यूटी पे जाना है एंड वही अगर एक ऑफ डे होता है तो आप 10-11 बजे उठते हो, तो इंटर्नशिप में एक शेड्यूल बन जाता है। आप एक डिसिप्लिन भी अगर लाना चाहो तो उसमें अच्छे से आ जाता है। एंड सेकंड सर, इंटर्नशिप में जब भी हमारे यहाँ से बोलते हैं एनओ वाले काम किए, आप सीटी स्कैन की डेट या फिर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन लेने जाओ, सर वो टाइम वहाँ पे मैनेजमेंट से ज़्यादा करना होता है कि अगर 15 मिनट्स का काम है, आपने काम वो पहले कर लिया एंड आप अराउंड 45 मिनट्स कहीं खाली बैठ गए हो, आप क्वेश्चंस कर रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, आपको आता नहीं है, आप वो पढ़ रहे हो। सर इंटर्नशिप में टाइम ऐसे ही निकलता है। एंड सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मानसा ने बोला, इंटर्नशिप में कभी भी ये फेज़ अगर आ भी रहे तो आपको निकालना पड़ेगा कि इंटर्नशिप के टाइम पे ही आपका नीट पीजी में सिलेक्शन नहीं होगा। आप अगर ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोचते हो। आप इंटर्नशिप में आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट है वही आपका बेस्ट अटैम्प्ट है एंड बाकी तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे ना, कुछ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप लोग भी थर्ड ईयर में क्लासेस करते थे, तो उनके भी आप पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दैट व्हेन यू अटेंड क्लासेस इन थर्ड ईयर, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फोकस थर्ड ईयर में थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स है, ENT, ऑप्थम, PSM। लेकिन अभी आपने बोला, शुभम ने बोला और कि हमने मेडिसिन अटेंड किया, सर्जरी अटेंड किया। अगर आप थर्ड ईयर में फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स अटेंड करते हो, सो व्हाट इज़ योर एजेंडा ऑफ अटेंडिंग? जस्ट अटेंड द क्लास, रीड द नोट्स और रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एज वेल। थर्ड ईयर में फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स को कैसे कवर किया आपने? अभिषेक, आपसे स्टार्ट करें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो थर्ड ईयर में फाइनल ईयर की जो क्लासेस होती हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज फाइनल ईयर में आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा अच्छे से नोट्स बनाने में। एंड क्लासेस में यहाँ पे जो वीक डेज़ की क्लासेस होती हैं, वीकेंड्स की जो क्लासेस होती हैं, आप नोट्स अच्छे से बनाइए। देन ज़रूरी नहीं है कि आप एक वही चीज़ पूरा आप स्टैंडर्ड बुक खोल के बैठ जाओ और आप अच्छे से रट्टा लगा रहे हो, नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेन आपका ये होना चाहिए कि थर्ड ईयर में आपको जस्ट पता होना चाहिए कि सर्जरी में ये टॉपिक हमें पढ़ना है, मेडिसिन में आप ये पढ़ना है। तो बेसिकली आपके नोट्स अच्छे से बने होने चाहिए एंड आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आएगा। थर्ड ईयर में आप ज़्यादा फोकस मत दीजिए कि नॉर्मल जो टेस्ट हो रहे हैं वीकली, ये वीकली टेस्ट इतने भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको थर्ड प्रॉफ पास करना है, उसके लिए आपको 2-3 मंथ्स इज़ सफिशेंट। उसमें भी जो आपके नोट्स बनते हैं जो क्लास में बैठ के, थर्ड ईयर में वो नोट्स आई थिंक पास होने के लिए सफिशेंट। एंड प्रॉफ में कुछ ये एम करना कि टॉप रैंकर बनना है, तो उससे तो कुछ बेनिफिट नहीं है। तो आप एक स्मार्ट स्टडी कीजिए। थर्ड ईयर में आपको फाइनल ईयर अच्छे से कवर करना है। और अभी एक डाउट ये भी होगा कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाऊँ, वहाँ पर लोग नोट्स खरीद रहे हैं, वीडियो, आप जो आपने ज्वाइन कर लिया वही। मेरे पास भी यही डाउट था कि मैं भी क्या दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करूँ जब मैं थर्ड ईयर में था, बट ये सोचना ही बेकार है, क्योंकि आप यहाँ पे कंसिस्टेंट रहोगे, आप खुद के नोट बनाओगे, वो आपको ज़्यादा याद रहेगा। और इंटर्नशिप में भले ही आपने रिवाइज ज़्यादा ना किया, वो अचानक से हिट करता है कि हाँ ये सर ने उस टाइम जब ये नोट्स में ये लाइन बोली थी तब उसका ये मतलब था। तो नोट्स आप यहाँ पे बैठ के अच्छे से बनाइए। थर्ड ईयर और फाइनल ईयर आप इस साल में कवर कर लीजिए। साथ आप क्वेश्चन बैंक की भी कीजिए, क्यू बैंक आप कर सकते हैं। एंड आप एक GT 1-3 मंथ्स के इंटरवल पे आप दे सकते हैं, आपको पता रहे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो थर्ड ईयर का तो जरूरत नहीं है। हिमांशा, कुछ कहना चाहोगे थर्ड ईयर के बारे में? सर आई थिंक कि थर्ड ईयर में इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट यू मेक योर नोट्स अ फाइनल ईयर एंड ऑल्सो दैट यू रीड वट एवर स्टैंडर्ड बुक्स दैट यू हैव फॉर द थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स। नॉर्मली क्या होता है कि वी आर टोल्ड थर्ड ईयर इज़ हनीमून पीरियड, लाइट है, 3 सब्जेक्ट है, इजीली कवर हो जाएगा। बट PSM, ENT, ऑप्था, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तुम्हारी रैंक बनाएंगे। जो भी मेरे को कॉल करता है, पूछता है, मैं उसको यही बोलती हूँ कि ठीक है, सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स एंड फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स दीज आर कंसेप्चुअल। ये तुम्हें पढ़ोगे 2-3 बार, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं होगी एक्सेप्ट फॉर द शॉर्ट सब्जेक्ट्स। बट PSM, ENT, ऑप्था, इसमें अगर गलती करी, और इसमें सिली मिस्टेक्स ही होती हैं तीनों में, तो फिर वो लाइक रैंक कॉस्ट करती है। सो व्हाट आई मीन टू से इसकी फाइनल ईयर में फाइनल ईयर के नोट्स बनाओ, नोट्स को पढ़ो, बट डोंट मेक एन अटेम्प्ट टू रीड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स फॉर फाइनल ईयर। उसके लिए फाइनल ईयर में बहुत टाइम मिलता है। थर्ड ईयर के लिए ढींगरा, खुराना और पार्सन्स, जो भी जिसको भी कन्वीनियंट हो, एंड पार्क्स, स्पेशली द लास्ट वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना, जो सब लोग छोड़ देते हैं, कम्युनिकेशन वाले, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। शुभम, आप कह रहे थे कि आपने थोड़ा लेट स्टार्ट किया। एक स्टूडेंट है हमारे पास जो कह रहे हैं कि थर्ड ईयर में मैंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो मैं थर्ड ईयर फाइनल ईयर पढ़ूँ या सेकेंड ईयर को दोबारा से रिवाइज करूँ? व्हाट इज़ योर से?
सर आई थिंक अभी भी ये शेड्यूल ही फॉलो करना बेटर है कि थर्ड ईयर फाइनल ईयर दोनों थर्ड ईयर में कंप्लीट हो जाए। सर उसका एक बहुत एडवांटेज है बिकॉज कि लाइक फाइनल ईयर में यू हैव टू फोकस मोर ऑन क्लिनिक्स बिकॉज आपको सर इन दी एंड प्रॉफ भी क्लियर करने हैं, उसमें आपके वाइवास होंगे, तो क्लिनिक्स पे फोकस करना है सर। बट क्लिनिक्स पे आप वही समझ पाओगे जब आपने पहले पढ़ रखा होगा। तो थर्ड ईयर में अगर आपका एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड डिजीज अगर होगी तभी आप फाइनल ईयर में वो चीज़ समझ पाओगे। वरना सर स्टार्टिंग से सर्जरी पोस्टिंग आ जाती है, शुरुआत के 2 मंथ्स में आ जाती है, आप शुरुआत के 2 मंथ्स में सर्जरी कंप्लीट भी नहीं कर पाते हो और आपको बहुत चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी बिकॉज वो एज ई से कि योर आईज सी व्हेन यू व्हाट योर ब्रेन नोज। तो अगर पता ही नहीं है कि आपको देखना क्या है तो फिर आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो फिर इट्स बेटर कि थर्ड ईयर में बल्क सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, आपका बेसिक नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि कितने डिजीज कैसे हैं, उसके बाद फिर हो सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर से इतने टीडी सब्जेक्ट नहीं है, फाइनल ईयर में बहुत आराम से कवर हो सकते हैं। नहीं, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे सर हमारा पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी बहुत अच्छा नहीं है तो क्या मैं मेडिसिन सर्जरी क्लासेस अटेंड कर सकता हूँ? सर मैंने भी ऐसे ही किया था कि मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर में बहुत अच्छे से सब टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, ऐसा नहीं कि कभी ब्लैकनेस थी, बट टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, मेरे नोट्स कोई भी प्रिपेयर नहीं थे। थर्ड ईयर में सब मैंने स्टार्ट किया था एंड फाइनल ईयर में मतलब थर्ड ईयर के एंड में जाते जाते मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के फाइनल फर्स्ट सेकंड ईयर के चालू कर दिए थे एंड देन इन द एंड इन द फाइनल ईयर आई कवर ऑल द सब्जेक्ट विच आई हैड कवर्ड। ठीक है, so these were the 2 generic questions from my side. One is internship and one is third year. Now I would like to allow audience, आप में से कोई भी इनसे कोई भी सवाल पूछना चाहे, you are more than welcome to ask any question to any one of them. Sir, my doubt is from Shubham Arora, sir. Sir, my doubt is like in the third year we have been said that we will complete all the third year and final year subjects in DAMS, like all the notes will be made. So my doubt is regarding the question banks, like the notes which we will be making, it would be very overwhelming for us to complete all the subjects first of all in the third year. So completing the question bank along with those notes would be very vast, like how to cope up with that, and if we have to skip some of the subjects question bank in the third year, what would be the major subjects that we should do in third year itself? Okay, I think to answer is best way कि we do the question bank for 2 purposes. First is to learn the art of doing the questions. Second is adding knowledge. There might be for instance like everyone feeds the knowledge differently. Not everyone can consume the same amount of knowledge. So सबको अपने तरीके से लेना पड़ता है कि मैं कितना क्वेश्चन कर सकता हूँ, कि कितने नॉलेज मेरे नोट्स में होनी चाहिए कि मैं बाद में ओवरवेलमिंग लगी से रिवाइज करने के लिए। तो सबका कंसेप्ट सबका अलग होता है। जैसे मेरा बहुत ज़्यादा था, मेरे को बहुत ज़्यादा फोमो होता था कि मेरे को सब कुछ ऐड करना है, तो मैं उसे डिफरेंशिएट करके रखता था कि ये जो एडिड पोर्शन है मेरे को हर बार रिवाइज नहीं करना है। मैंने सेम सर्जरी नोट्स हफ्ते में भी करे हैं और सेम सर्जरी नोट आधे दिन में भी करे हैं, तो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि बाद में क्या रिवाइज करना है क्या नहीं रिवाइज करना है, तो डिफरेंशिएट करके रख सकते हैं। एंड क्वेश्चन बैंक से ये होता है कि यू गेट नॉलेज। द पॉइंट इज कि आपको जब क्वेश्चन बैंक करते हैं आपको नई चीज़ें मिलेंगी, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। एंड INICET जैसे एग्जाम्स में हर साल नई इन्फॉर्मेशन आती है, अब हर साल नई इन्फॉर्मेशन आएगी, हर साल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आएंगी, अब सब कुछ नहीं याद रख सकते, सब कुछ अपने नोट्स में डाल भी नहीं सकते। तो इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट कि उनको सेव करके रख सकते हैं या फिर वो कर सकते हैं। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन बैंक आपको सिखाता है वो होता है कि आर्ट ऑफ डूइंग क्वेश्चन, कि मेरे को कब कितनी स्पीड से, जैसे INICET बेसिक एग्जाम में 3 आवर्स का पेपर हो जाता है एंड क्वेश्चन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लंबे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकलना चाहिए। जैसे आपने लास्ट लाइन देखी, उसके बाद आपको लगा कि शायद से इस क्वेश्चन के अंदर एफएनएसी फाइंडिंग हो सकती है, आपने एफएनएसी फाइंडिंग देखी, आपने पूरा क्वेश्चन रीड भी नहीं किया, फिर आप शायद से और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि हाँ ये मेलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है, या फिर ये बिनाइन की तरफ जा रहा है, तो आप उसके बाद आपने सीधा आंसर कर दिया, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शंस के थ्रू रेट्रोगेट जा सकते हो। ये सब चीज़ आपको क्वेश्चन सिखाएंगे। और इसमें ये भी नहीं आपको सब्जेक्ट छोड़ने हैं, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होते, आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ोगे आपकी रैंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आएगी। मैंने एंड में कुछ क्वेश्चन गलत कर लिए थे, ढूंढ के क्वेश्चन गलत कर रहे थे एंड मेरे को उससे इफेक्ट हुआ है। तो आप क्वेश्चन के कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते, आप टॉपिक्स छोड़ सकते हैं। आजकल बहुत सारे अवेलेबिलिटी है, आपको स्कीम्स मिलेंगे, आपको टॉपिक्स मिलेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पहले वो कर लीजिए। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको अभी आपने जो फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट किया फर्स्ट टाइम में पूरा मॉड्यूल कंप्लीट करना है, आप पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सारे मॉड्यूल कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अगली रीड जब आएगी तब कर लीजिए। जैसे व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि हर रिवीजन के साथ एक ना एक क्वेश्चन का सोर्स होना चाहिए। जैसे मैंने 2 बारी में मिला के मॉड्यूल कंप्लीट किया था, बिकॉज मैंने पोस्टिंग के फाइनली में चालू किया था, 2 बारी में मॉड्यूल कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट पोस्टिंग से मैंने SWT चालू कर दिया था कि हर रिवीजन के साथ मैं एक SWT दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट उसके साथ हर के साथ मैं 2 SWT दूंगा, ऐसे करना चालू कर दिया था, ताकि आपको हर बार एक क्वेश्चन की आर्ट भी होती रहे। और व्हाट इफ आपने उस, जैसे आप पूरे एक दिन के साथ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव नहीं होते, अब रात के टाइम जो टॉपिक पढ़ते हो वो अच्छे से नहीं हो पाता है, वेरी यूजुअल है, क्योंकि आप 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप रात के टाइम जो टॉपिक किया वो उसी की कंसंट्रेशन के साथ किया जो आपने मॉर्निंग में किया था, तो आपको नहीं याद रहा। बट अगर आप अगले दिन उसके क्वेश्चन कर रहे हो या फिर रात को उसके क्वेश्चन कर रहे हो, तो हो सकता है आपको रियलाइज हो कि यार ये बात तो मुझे याद ही नहीं है, इवन तो मैंने अभी पढ़ा मेरे को कर्व 65 याद नहीं हुआ, तो फिर आप कर्व 65 उस क्वेश्चन से रिवाइज कर सकते हो। तो ये रेट्रोग्रेड मैकेनिज्म आपको तुरंत के तुरंत हो जाएगा, आपको तुरंत पता भी चल जाएगा कि ये क्या याद नहीं रहता है, और इवन आपको आइडिया भी लग जाएगा कि मैं क्या याद कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ।
तो ये सारे प्रोसेस हैं जो क्वेश्चन बैंक से बहुत एनहांस हो जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं, बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर क्वेश्चन बैंक को बर्डन लेके नहीं चलना है, एक सपोर्टिव सिस्टम एडजंक्ट है वो जो आपकी प्रिपरेशन को फाइन करेगा, और इसमें कोई टारगेट नहीं है बिकॉज क्वेश्चन बैंक आजकल 20,000 तक हो चुके हैं, ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है कि आप एक ही साल में उसे कंप्लीट कर लो। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने नोट्स को उसे एडजंक्ट बना के चलो ताकि आपकी प्रिपरेशन एनहांस हो और आपकी प्रॉपर्टीज एनहांस हो कि आप किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। Thank you, Shubham. Anybody else having any question to ask? Good evening, everyone. First of all, congratulations to all the 3 winners from our college. My question is from Mimamsa ma'am. Ma'am, how did you manage your preparation along with internship? सी इंटर्नशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि तुम्हें प्लान बनाना है, ठीक है। सपोज़ इस साल जैसे इंटर्नशिप मार्च से स्टार्ट होगी, सो यू हैव टू बी क्लियर कि ठीक है अभी मार्च से स्टार्ट हुई है, मुझे नवंबर तक फर्स्ट रिवीजन, और अगर मेरा TND नहीं हुआ है तो मेरे TND के नोट्स तब तक बन जाने चाहिए, ठीक है। नवंबर से लेके दिसंबर तक मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर जो मैंने TND के नोट्स बनाए उनका एक रिवीजन हो जाना चाहिए। और एग्ज़ाम जब है उससे 1 महीना पहले मेरी 2 रिवीजन साइकिल, पहली वाली तो ख़त्म हो गई थी, अब जो सेकंड रिवीजन साइकिल है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो ये कस्टमाइज्ड है, एवरीबडी हैज़ देयर ओन आइडिया ऑफ मेकिंग देयर ओन प्लान। सो एक क्लियर प्लान बनाओ, वो ऑन एंड ऑफ रहता है। लाइक आज मैंने सोचा कि मुझे ये फॉलो करना है, उसको पेपर पे जॉट डाउन कर दो और उसी के अकॉर्डिंग चलते रहो। सो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, इंटर्नशिप के टाइम पे जब ड्यूटी पर हो तब ड्यूटी पे जो आसपास हो रहा है वो देखो, स्पेशली इन मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी पोस्टिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैजुअलिटी में, इलेक्टिव में कोई नहीं बोलेगा कि तुम आसपास थोड़ा देखो, एफर्ट लगाओ, इट्स फाइन, उस टाइम पे अपना पढ़ लो। बट वैसे जैसे मेरी लास्ट पोस्टिंग ऑर्थो थी, इस बार नीट में ऑर्थो वॉज वेरी क्लिनिकल। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि ये फ्रैक्चर है, इसका नाम बताओ, ये फ्रैक्चर है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बताओ, एक भी क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन वॉज ऑन मैनेजमेंट, जो हमें ऑर्थो के इमरजेंसी में दिखता है। सो उस चीज़ को तुम ऑब्जर्व करो। लकीली इन UCMS वी हैव वेरी गुड क्लिनिक्स, ठीक है। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो खाली जाता हो। रेयरेस्ट से रेयरेस्ट केस दिखेगा। मैंने वार्डनबर्ग सिंड्रोम का केस देखा है ऑफ्था में, जस्ट बिकॉज आई वॉज ऑब्जर्वेंट इनफ। तुम नहीं देखोगे तुम्हें कोई नहीं दिखाएगा, तुम देखना चाहोगे तो तुम्हें सब कुछ दिखाया जाएगा। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। Ma'am, there's one more question. Ma'am, is it necessary to read standard books or our notes are enough? सी इट डिपेंड्स ऑन विच ईयर यू आर इन। लाइक अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि तुम नोट्स पढ़ो। फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक स्टैंडर्ड पढ़ना है। बिकॉज स्टैंडर्ड का क्या होता है, जब तुम पढ़ोगे तुम्हें लगेगा कि फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं हुआ, एग्ज़ाम में इससे कुछ नहीं आएगा, ना प्रॉफ में आएगा ना नीट में आएगा। बट व्हेन यू आर इन एन एक्चुअल एग्ज़ाम, चाहे वो तुम्हारा नीट हो, USMLE हो, INI-CET हो, यू विल हैव अ वेरी डिस्टेंट रिकॉल ऑफ रेयरेस्ट थिंग्स, ठीक है। वहाँ पर वो चीज़ काम आती है। एंड ऑल्सो वी आर रीडिंग टू बिकम बेटर क्लिनिशियंस, खाली नीट थोड़ी निकालना है ना। सो अगर तुम इंटर्नशिप में हो तो नहीं पढ़ी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, अभी नोट्स पढ़ लो। बट अगर फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा है, सेकेंड ईयर का है और इवन थर्ड ईयर का है, तो आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू गो थ्रू स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। Thank you, ma'am. I'll just add one point. Look, standard textbook पढ़ना is very recommended, but not cover to cover. अगर तुम्हें वो स्मार्ट आर्ट आ गई कि मुझे इस किताब में से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, then you have won it. पूरा पढ़ने के अपने प्रॉज एंड कॉन्स है और ना पढ़ने के अपने प्रॉज एंड कॉन्स है। बट स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि मुझे पता हो कि मुझे इस बुक में से कौन सा टॉपिक बुक से पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये आपको एक टाइम के साथ आएगा, क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर ख़त्म कर लेते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि सेकेंड ईयर की बुक में से क्या पढ़ना चाहिए था और क्या नहीं, ख़त्म करने के बाद। फिर थर्ड ईयर ख़त्म होता है तो याद आता है कि नहीं, ये तो पार्सन से पढ़ लेना चाहिए था इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप यही चीज़ पहले पूछ लो, जब MBBS चल रही थी तो शायद शुभम मेरे पास किताब लेके आया था कि ये सर इसमें से कौन सी चीज़ें पढ़नी है, निशान लगा दो। तो वो जो निशान लगाने वाली बात होती है ना, वो वही इंसान बता सकता है जिसने खुद पढ़ी हो वो किताब। अगर किसी ने हैरिसन पढ़ी है तो आपको बोल देगा ये 5 चीज़ें हैरिसन से पढ़ ली, ये काम की हैं, बाकी काम की नहीं है। तो वो 5 चीज़ें ही तो इम्पॉर्टेंट है। तो टेक्स्ट बुक ना पढ़ना या पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्टेड पढ़ना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? एनी क्वेश्चन? सर आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन वन थिंग। हाँ प्लीज़ मोमेंट्स। यूजुअली क्या होता है कि फाइनल ईयर के स्टार्टिंग के 3 महीने में वी आर बिजी आस्किंग पीपल कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैंने भी ऐसे ही अपने 2 महीने ख़राब करे थे। लाइक लोगों से पूछते रहो कि हैरिसन पढ़नी चाहिए, डेविडसन पढ़नी चाहिए, मैथ्यूज़ पढ़नी चाहिए, बेली पढ़ूँ, SRB पढ़ूँ या मणिपाल पढ़ूँ। सबको आंसर पता होता है कि हैरिसन पढ़नी है तो पढ़नी है, बेली पढ़नी है तो पढ़नी है। सो व्हाट आई इंसिस्ट इज़ कि यू शुड नॉट आस्क कि कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, रादर देन आस्किंग। उससे बेटर है कि तुम ये पूछो कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए उसमें से।
क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, हैरिसन में टेक्स्ट पढ़ूँ, टेबल पढ़ूँ, एल्गोरिथम पढ़ूँ. सो प्लीज़ अपने 2 महीने ख़राब मत करना स्टार्टिंग के लोगों से पूछने में. Alright, so we are about to conclude this video. So we had a very good interaction with all 3 of them. So I would like to thank all the 3 rankers, Shubham, Mimamsa and Abhishek, and once again a big round of applause for all of them for their achievement. So we shall be uploading this video for all of you. Thank you very much.